In this video lecture, we are going to discuss about sperm. Sperm is the motile male gamete. We have to remember a few things about the sperm. That sperm is a motile male gamete, whereas if we talk about a spermatid is a non-motile male gamete. This is the difference between a sperm and spermatid. We have to remember few terminologies regarding sperm. These are, first one is spermiogenesis. Spermiogenesis is conversion of spermatid into sperm. Spermiogenesis is the conversion of spermatid into sperm, whereas there is another term which is associated with sperm, and that is mainly associated with the release of sperm, that is called spermiation. Spermiation means release of sperm from Sertoli cell of seminiferous tubule. These two words coincide with each other. We have to remember that carefully. Spermiogenesis is the conversion of spermatid into sperm, whereas spermiation is the release of sperm from the Sertoli cells of seminiferous tubule. Now we are going to discuss about the structure of sperm. This is one of the most important phenomena you have to remember regarding the sperm, because this is the most important question that is asked in your examination. We are going to talk about the structure of a sperm. But before discussing or drawing about the structure of sperm, you must have to remember few things about the sperm. The sperm entire body is divided into 4 parts. The first part is head. The second part is neck. The third part is body. And the last one is tail. You have to remember few things regarding this. In head region, you will find few things that are acrosome, nucleus, proximal centriole, These are the main things which are present in the head of a sperm. You have to remember these things because these are the most important things in the head region: acrosome, nucleus and proximal centriole. Now the second part is neck. Neck region only consists of distal centriole. Remember these things, what a sperm is made up of. It's made up of 4 parts, that is head, neck, body and tail. The head region consists of acrosome, nucleus and proximal centriole, whereas the neck region only consists of a distal centriole. Now we are going to talk about the body region. Body region consists of a special type of mitochondria which is present in the sperm, that is called as Nebenkern. Spirally coiled mitochondria is known as Nebenkern. Now we are going to discuss more few things which are present in this region. In this region, there are filaments which arises from the distal centriole. These filaments are called as
axial filament. These two things are mainly present in the sperm, and the third structure that is present in the body region is ring centriole. Main these things are present in the body region. Mainly we are talking about the Nabhan cone, axial filament and the ring centriole. And the last region, that is tail region. Tail region only consists of the minimum amount of cytoplasm. Tail region only consists a little amount of cytoplasm. Now we are discussing about the structure of a sperm. Remember this thing, head. We are talking about head. Head consists of acrosome, nucleus and proximal centriole. Their function are very much important to us. Acrosome is made up of Golgi bodies. एक्रोसोम जो होता है वो गोल्जी बॉडीज का बना हुआ होता है और साथ ही साथ इसके अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जो गोल्जी बॉडी होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं और इसके अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए एंटर करेगा ओवम में, तो उसकी जो लेयर्स होती हैं उनको पेनिट्रेट करना जरूरी है। उन लेयर्स को पेनिट्रेट करने के लिए एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेनिंग जेनेटिक मैटर। एज वी नो, न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। This is also present in the head. And the third one is proximal centriole. Proximal centriole leads to formation of spindle fiber. Leads to formation of spindle fiber for first zygotic division. These three things contain the most important role in a sperm. डिस्टल सेंट्रियोल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे एक्सियल फिलामेंट अराइज होते हैं और ये एक्सियल फिलामेंट एक्चुअली टेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम बात करते हैं बॉडी रीजन की। तो बॉडी रीजन में दिस टर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज नेबर्न कर्न। स्पेशल टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जनरली माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो स्पर्म होता है उसमें स्पेशल टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो रिबन शेप्ड का होता है। और उस रिबन शेप के माइटोकॉन्ड्रिया को जो स्पर्म में पाया जाता है दैट इज कॉल्ड नेबर्न कर्न। इसके बाद ये जो एक्सियल फिलामेंट्स हैं ये मौजूद होंगे और थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड इन बॉडी रीजन इज रिंग सेंट्रियोल। लास्ट वन, टेल कंटेन्स वेरी लेस साइटोप्लाज्म। मींस मदर के अंदर, मतलब जो बेबी होगा, जो बेबी फॉर्म होगा फर्दर फ्यूचर में, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल आएगा न्यूक्लियस का वो फादर से आएगा। साइटोप्लाज्म बहुत कम अमाउंट में, इस वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है वो फादर का गैमेट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। फादर का गैमेट जो है वो न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट करता है मेनली, जबकि जो फीमेल गैमेट होता है उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है। तो जाइगोट को जो साइटोप्लाज्म होगा वो प्रोवाइड करेगा फीमेल गैमेट दैट इज एग। रिमेंबर दीज थिंग्स, हेड कंटेन एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है गोल्जी बॉडी का बनाया हुआ होता है, मतलब गोल्जी बॉडीज होते हैं। वो गोल्जी बॉडीज के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। इन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स का फंक्शन ये होता है कि जब वो ओवम में एंटर करेगा, स्पर्म जब ओवम में एंटर करेगा तो वो उसकी डिफरेंट लेयर्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है। सेकंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। थर्ड वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम जो ये है, फर्स्ट जब जाइगोटिक डिवीजन होगा, मतलब जैसे ही जाइगोट बनेगा तो उसको डिवाइड करने के लिए स्पिंडल फाइबर की जरूरत होती है, तो स्पिंडल फाइबर को बनाने का काम करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। फिर मेन थिंग यहाँ पे हमको बॉडी में याद रखनी है, ये स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया मतलब रिबन जैसा स्ट्रक्चर होगा और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को नॉर्मली बॉडी में बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, लेकिन हम यहाँ पे स्पर्म की बात कर रहे हैं। तो स्पर्म का जो फंक्शन होता है वो तैरना होता है। एक्चुअली अगर हम स्पर्म को देखें तो ये उसका हेड रीजन, ये उसका नेक रीजन, ये उसका बॉडी रीजन और ये उसकी टेल।
तो ये जो टेल होगी ये स्विमिंग मूवमेंट करती है, तो तैरने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी देने का काम जनरली कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन स्पर्म के अंदर स्पेशल टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया है जो स्पर्म को फ्लोट करने में या स्विम करने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड नेबनकम। Now we are drawing the structure of a sperm. As we know, four structures are head, neck, body and tail. You have to remember the components of a sperm. Now we are going to draw head. Head is a little bit of a triangular structure. In this region you have to remember few things. There is a normally nucleus found that is circular, but the nucleus that is found in sperm is a little bit elongated. This is nucleus. Below the nucleus there lies proximal centriole. Below the nucleus lies the proximal centriole, whose function is to form spindle fiber during the first zygomatic division. Next, above this a bag-like structure is found which consists hydrolyzing enzyme, and this structure is acrosome. This is the head region. अब few things जो थी हमने ऐड नहीं करी थी, जो इतनी मेन नहीं है लेकिन हमको रिमेंबर रखनी पड़ेंगी। हेड रीजन के बाद आता है नेक रीजन, और नेक रीजन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, याद रखने के लिए जो पास में है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और जो थोड़ा सा दूर नेक रीजन में होगा दैट इज डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये जो हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज डिस्टल सेंट्रियोल। अभी डिस्टल सेंट्रियोल से कुछ फिलामेंट्स अराइज होते हैं, जो फिलामेंट्स आगे चल के फ्लैजिला का फ्लोटिंग मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दीज फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज एक्सियल फिलामेंट। These arises from the distal centriole. Distal means दूर, proximal मतलब पास में, जो हेड के पास में है वो proximal और जो हेड से थोड़ा सा दूर है वो distal। अब इसके बाद जो पोर्शन आता है that portion is, we are not going to draw the entire structure. This portion, this region is its body. Body region में कुछ चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि बॉडी रीजन में स्पेशल टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है जो थोड़ा स्पाइरल शेप का होता है, लाइक दिस, लाइक रिबन लाइक स्ट्रक्चर। This special type of mitochondria is known as Nebenkohn. These are axial filaments. इसके अलावा एक और चीज बोली थी कि रिंग सेंट्रियोल पाए जाते हैं, तो बेस ऑफ बॉडी रीजन में सेंट्रियोल का पेयर पाया जाता है और इसको बोलते हैं हम रिंग सेंट्रियोल। ये रिंग सेंट्रियोल बॉडी के नीचे बेस वाले रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा आगे टेल होती है, टेल रीजन में कुछ नहीं होता, बहुत लिटिल अमाउंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। ये जो हेड रीजन होता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर जिसने इसको बाहर से कवर करके रखा है स्पर्म को, वो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो ये एक्रोसोम मौजूद है जिसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, और वहां से लेकर न्यूक्लियस वाला रीजन एक डबल मेम्ब्रेन शीट से कवर होता है, एक डबल मेम्ब्रेन शीट से कवर्ड होता है। इस शीट को बोलते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन की शीट को बोलते हैं, दिस डबल मेम्ब्रेन शीट इज कॉल्ड गैलिया। जो एक्रोसोम और न्यूक्लियस होता है वो एक डबल शीट से कवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड गैलिया। और इसके अलावा यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट, इससे एक अलग शीट मौजूद होती है जो इसके थोड़ा सा गैप देके मौजूद होती है, जो वहां से लेकर बॉडी रीजन तक आती है। टेल रीजन में नहीं होती है, सिर्फ बॉडी रीजन तक आती है। तो ये जो एक डिस्टिंक्ट लेयर होती है जो यहाँ न्यूक्लियस के नीचे से लेकर बॉडी रीजन तक आएगी, टेल रीजन तक नहीं, दिस लेयर इज कॉल्ड मैन शीट।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। इसके अलावा न्यूक्लियस और एक्रोसोम को एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कवर करता है, दैट इज गैलिया। न्यूक्लियस के नीचे से एक मेम्ब्रेन जाती है जो अलग है उससे और वो बॉडी रीजन तक जाती है दोनों तरफ, दैट इज कॉल्ड मैनशीट। इसके अलावा हेड रीजन में क्या क्या पार्ट्स मौजूद है? हेड रीजन में एक्रोसोम मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मौजूद है। नेक रीजन में मतलब जो गर्दन वाला रीजन है उसमें क्या मौजूद है? डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से फिलामेंट्स अराइज होते हैं और ये एक्सियल फिलामेंट्स एक्चुअली फ्लैजिला का फॉर्मेशन करते हैं। फ्लैजिला वो स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म को तैरने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पर बॉडी रीजन में स्पेशल टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो स्पाइरली अरेंज होता है, उसको बोलते हैं हम नेबन कण। नेबन कण का सिर्फ इतना फंक्शन होता है कि एनर्जी प्रोवाइड करना स्पर्म को उसके स्विमिंग मूवमेंट के लिए। बॉडी रीजन के लास्ट पोर्शन में सेंट्रियोल पाया जाता है जो रिंग फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड रिंग सेंट्रियोल। और रिंग सेंट्रियोल के बाद लास्ट रीजन जो होता है वो टेल रीजन होता है। टेल रीजन में बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। मदर कॉन्स्टिट्यूट करती है मेजर साइटोप्लाज्म जाइगोट में और मेजर न्यूक्लियस पोर्शन जो होता है वो फादर कंट्रीब्यूट करता है। थ्रोस्पर्म, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, इतना पोर्शन जो था वो हेड था, इतना सा जो पोर्शन था वो नेक था, फिर नेक के बाद यहाँ तक का जो पोर्शन था वो बॉडी थी और इसके अलावा बॉडी के अलावा जो नीचे टेल वाला रीजन यहाँ पे स्पेस की कमी होने की वजह से सही नहीं बना, उसको सही से बनाना पड़ेगा कि बॉडी रीजन के बाद टेल रीजन होता है, तो ये टेल रीजन ऐसा होता है, ये टेल रीजन हो जाएगा जो नीचे हमने बनाया है और इन चारों पार्ट्स को मिलाकर एक स्पर्म बन जाएगा। ये डायग्राम एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके करें और इसकी लेबलिंग याद रखने की कोशिश करें। थैंक यू।